Hello, my dear students. How are you? I think all of you are stay home, stay safe during COVID pandemic. So, guys, right now I am coming for a new lecture of AC and DC interconnection. This is the lecture number 5, subject power system 1, electrical engineering 5th semester IKGPTU. Before that, I suggest you, if you are the students of electrical engineering in any university across the country, especially IKGPTU, you can subscribe my channel and share with your friends. And if you are the faculty in IKGPTU as well as any university across the country, you can share my YouTube channel with your friends and with your students to get the particular subjective knowledge of the university papers. And right now I am just covering the syllabus of IKGPTU and it will cover up to 15th October, and after that then I will go for different universities like RTU, BTU, AKTU, Aryabhatta Knowledge University Patna and RGPB Bhopal also for particular odd semester, especially odd semester like 3rd semester, 5th semester and 7th semesters. Circuit analysis, electrical machines, each subjects according to electrical engineering in your curriculum, in your syllabus. So guys, why we are coming on this particular topic, AC and DC interconnection? Because in previous lecture where I discussed regarding the DC distribution, where you see the interconnection, last slide you see the interconnected distribution systems. In interconnected distribution system, generally we have to interconnect two different DC network or two different AC network, where we need a particular synchronization to interconnect the two systems to maintain the overall profile of the power system. So guys, before going on this particular topic, I will suggest you these are the particular reference book. In every slide I suggest you that you can refer these books to get the best concept and deep knowledge regarding particular topics delivered by me, and updated lecture of each and every topic will released in the month of January 2021 by me, where you get the additional knowledge beyond your syllabus regarding the particular topics. So guys, I will going to start AC and DC interconnections. Before that, you know the evolution of interconnected system. One of the great engineering achievement of the last century has been the evolution of large synchronous alternating current power grids, in which all the interconnected system maintain the same precise electrical frequency. आपको पता होना चाहिए आज से 5 या 10 साल पहले हमारे पास इंडिया में जनरली 5 ग्रिड्स हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में, अगर मैं इंडिया की बात करूं। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो उसमें जनरली हमारे पास नॉर्दर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड और बहुत सारे ग्रिड हमारे पास जो जनरली है नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न एंड सेंट्रल ग्रिड है हमारे पास। इसमें आज के डेट में अगर देखा जाए तो अदर देन साउदर्न ग्रिड ऑल ग्रिड आर इंटरकनेक्टेड। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था कि गुजरात से लेके असम तक, अरुणाचल प्रदेश तक सिंगल फ्रीक्वेंसी सप्लाई हम आज के डेट में कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ एसी सिस्टम। उसके बाद सेकेंड आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड interconnections have played a key role in the history of electric power system. Most national and regional power system that exist today began many decades ago as isolated system. ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वही सारी चीजें हैं कि जो हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूशन, सारे जनरेटिंग स्टेशंस थे वो सारे के सारे एक तरह से आइसोलेटेड थे। कुछ पार्ट उधर है, कुछ पार्ट उधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है। Often as a single generator in a large city, as power system expanded out from their urban cores, interconnections among neighboring system become increasingly common. अब क्या है, अब जैसे कई बार क्या होता था कि इन सब चीजों के कारण जो पावर का प्रॉपर रेगुलेशन था
कि चलो पर्टिकुलर बिहार में या यूपी में या कहीं पे हमें कम या कहीं पे ज़्यादा, वो सारा का सारा डीरेगुलराइज्ड हो गया बाय इंटरकनेक्टेड सिस्टम. The first power pool in the United States was formed in the Connecticut Valley in 1925. तो जो पहला इंटरकनेक्शन किया गया था यूएस में वो हुआ था 1925 में इस पर्टिकुलर वैली में. सेकेंड है द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरकनेक्शंस इन यूरोप केम इन 906. जो फर्स्ट इंटरकनेक्शन हुआ था यूरोप में वो 906 में हुआ था when Switzerland built transmission links to France and Italy. तो अब आप सोचिए हम 10 साल पहले अपने कंट्री को इंटरकनेक्ट कर पाए हैं एंड यूरोपियंस आर इंटरकनेक्टेड देयर सिस्टम्स इन 906. कितना पुराना, आज से 100 साल पहले वो पूरा का पूरा इंटरकनेक्ट कर चुके हैं टू मेंटेन द प्रॉपर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. Next, the general potential benefits of grid interconnection. The main question in your mind कि सर आप ये इंटरकनेक्शन बता रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है? What is the benefit of interconnection? So there are number of technical rationale for grid interconnections, many of which have economic components as well as technical rationales for grid interconnections include. तो मैं अभी आप 10-12 चीजें अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा 6 to 10 जो कि आप उसके बारे में समझ पाएंगे कि व्हाई द सिस्टम इंटरग्रिड इंटरकनेक्शंस आर रिक्वायर्ड राइट नाउ. क्यों हमें जरूरत पड़ रही है सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए, इंटरकनेक्शन करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इन सब चीजों. तो फर्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग रिलायबिलिटी एंड पूलिंग रिजर्व्स. इसमें पहला पॉइंट है हमारा जो रिलायबिलिटी है सिस्टम का और पूलिंग रिजर्व्स है वो इंप्रूव होता है. कैसे वो देखिए. द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपेसिटी दैट मस्ट बी बिल्ट बाय इंडिविजुअल नेटवर्क टू इंश्योर रिलायबल ऑपरेशन व्हेन सप्लाईज आर शॉर्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय शेयरिंग रिजर्व विद इन एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. अब चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारा एक सिस्टम है जो कि भाखरा नांगल में है हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा है हमारा टेहरी उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तीसरा है हमारा हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और चौथा है हमारा एनटीपीसी दादरी. अब इन चारों को हमने अकॉर्डिंग टू पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है इनको पूरा का पूरा इंटरकनेक्ट किया हुआ है. अगर मान लिया जाए किसी एक भी पर्टिकुलर हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है आइदर हाइड्रो और आइदर न्यूक्लियर और आइदर थर्मल, इसमें किसी में भी मान लिया जाए मिसिंग हो जाता है पावर सप्लाई, किसी भी कारण से फॉल्ट आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया जिस कारण से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो गया, तो रिमेनिंग जो हमारे सिस्टम्स है दैट विल बी मेंटेन द प्रॉपर सप्लाई. हमारे जो प्रॉपर सप्लाई है उसको ये पूरे के पूरे जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वो मेंटेन रखेगा और कभी भी जो हमारा वोल्टेज प्रोफाइल है या पावर सिस्टम का प्रोफाइल है उसको डिक्लाइन नहीं होने देगा. सो दीज आर दी बेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरकनेक्शन ऑफ टू नेटवर्क और टू हमारा दो हमारे ग्रिड थे या दो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको इंटरकनेक्टेड करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इट्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड पूलिंग रिजर्व. Second advantage is reduced investment in generating capacity. Means individual system can reduce their generating capacity requirement or postpone the need to add new capacity if they are able to share the generating resources of an interconnected system. It means during the peak hours when we need extra supply during the month of June as well as July, when the power scarcity will happen in particular big cities, urban cities. So by applying interconnected systems, the extra power demand during the peak hour will be easily managed by using interconnected system, and no need to develop a particular new generating plants or new generators like DG sets and other resources of electrical power sources. If they maintain a particular interconnection between a hydro, nuclear and thermal power plants, they will manage their peak load demand easily. Then next is improving load factor and increasing load diversity. सबसे important thing जो होता है particular systems का that will be the load factor. If your load factor will be less than 0.5, your overall system is your overall system will be very
useful during the low demand of electrical supply. If you generate, I just give you the example, if you generate 1 kilowatt and your demand is nearby 400 watt only, it means 600 watt of electricity will loss due to the less load factor. So you have to maintain the load factor, and during the low power demand you can close or we can stop a generating in particular 1 units of your interconnected systems. It means if you have a 4 generating plants during your entire interconnected system and the low demand will happen, so you can shut down a systems where the cost of generating will be suddenly going to low. It means you can save the generating cost by closing a particular extra generating units during the low demand of electricity. Then the system can improve poor load factors by interconnecting to other systems with different types of load or load with different delay or seasonal pattern that complement their own. जैसा मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग दी समर, इससे पिछले पॉइंट में आपने देखा व्हेन यू हैव ए पीक डिमांड, व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा डिमांड in particular urban cities for AC and all electrical equipments to run all electrical equipments, तो आप क्या कर सकते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के थ्रू आप उस प्रॉपर एक्स्ट्रा डिमांड को मेंटेन कर सकते हैं. Similarly, when you have a low demand in particular area, like in the month of February and March, no fan and no AC load and no other additional loads of electricity in your home will require. तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, जो आपका 4 जनरेटिंग प्लांट्स है या 5 जनरेटिंग प्लांट्स है, उसमें अगर आप देख रहे हैं कि योर लोड फैक्टर विल गोइंग टू लो डे बाय डे, तो आप किसी पर्टिकुलर एक जनरेटिंग स्टेशन को आप शट डाउन कर सकते हैं और ओवरऑल जो आपका जो पूरा का पूरा लोड फैक्टर है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन न्यू कंस्ट्रक्शन. It means unit cost of new generation and transmission capacity generally decline with increasing scale up to a point. Sharing resources in an interconnected system can allow the construction of larger facilities with lower unit cost. It means अगर हमें पता है कि हमें पर्टिकुलर किसी एरिया में एक बहुत बिग इंडस्ट्रीज लगानी है, वहाँ नियर बाय कोई भी जनरेटिंग प्लांट नहीं है, सो बाय अप्लाइंग ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम, आपका भले ही जनरेटिंग स्टेशन किसी फार एरियाज में बहुत दूर है आपसे, आप उस पर्टिकुलर सप्लाई को वहां पे लाके बाय इंटरकनेक्टेड सिस्टम के थ्रू लाके अपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जो भी आपका नया डिजाइन है, नया डेवलपमेंट है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ जनरेशन मिक्स एंड सप्लाई सिक्योरिटी. Interconnection between systems that use different technologies and or fuels to generate electricity provide greater security in the event that one kind of generation become limited. Historically, this complementary has been a strong incentive for interconnections between hydro-dominated system and thermal-dominated system. A larger and more diverse generating mix also implies more diversity in the types of forced outage that occur, improving reliability. आज के डेट में जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया हुआ है, एवरी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव राइट टू गिव ए bidirectional meter to the consumer, and that bidirectional meter will interconnect between a solar power stations, rooftop solar power stations mounted on the consumer ends. When the consumer demand will be low, they will return back to the supply through the PSPCL or other state electricity board. क्या होता है आजकल जनरली सोलर रूफटॉप आप लगा सकते हैं 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, एंड इंडस्ट्रीज के लिए, पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए तो वो हाई रेंज पे भी लगा सकते हैं 100 किलोवाट का, 200 किलोवाट का. आप सरप्राइज हो जाएंगे, जो मैगजीन है, एक पेपर जो न्यूज़पेपर है राजस्थान पत्रिका, उसका जो जयपुर में ऑफिस है वो टोटली कनेक्टेड विद सोलर. उन्होंने सोलर से कनेक्ट किया हुआ है. जो एक्स्ट्रा डिमांड चाहिए वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो लोग ले लेते हैं, और व्हेन देयर डिमांड विल बी लो, जब उनका डिमांड नहीं होता दिन में ड्यूरिंग डे टाइम, वो पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिटर्न बैक कर देते हैं बाय यूजिंग ए बाय डायरेक्शनल मीटर. और नाइट में जब उनका प्रिंटिंग का काम चलता है, देन दे रिक्वायर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उस टाइम पे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ले लेते हैं. तो उन्होंने पूरा का पूरा जो इंटरकनेक्शन किया हुआ है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पर्टिकुलर कंज्यूमर के साथ हो जाता है आजकल इजीली, क्योंकि इंटरकनेक्शन जो आज के डेट में है बाय अप्लाइंग ए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इट्स वेरी सिंपल टू इंटरकनेक्ट इन ए एसी नेटवर्क ऑल्सो. Then next is economic exchange. Interconnection allow the dispatch of
least costly generating units within the interconnected areas, providing an overall cost saving that can be divided among the component system. Alternatively, it allows expensive power from one system to the sold to system with more expensive power. It means एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट किया जाता है पर्टिकुलर प्राइवेट जनरेटिंग यूनिट्स के बीच में टू मेंटेन द लो कॉस्ट पावर एंड टू प्रोवाइड ए लो जनरेटिंग कॉस्ट पावर टू द कंज्यूमर्स. जैसे आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज आ गई है आपकी जो कि जनरेटिंग साइड पे काम कर रहे हैं, लाइक रिलायंस एनर्जी है, एसआर पावर है, जिंदल पावर है, एसीसी पावर्स है. तो ये सारे के सारे जो जनरेटिंग कर रहे हैं बाय अप्लाइंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम दे कैन सेल देयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इजीली बाय इंटरकनेक्टेड सिस्टम. इट मींस अगर मान लिया जाए कि रिलायंस का प्लांट कहीं पे लगा हुआ है इंडिया में और उसका जनरेटिंग प्लांट्स कहीं पे लगा हुआ है, तो वो अपने सप्लाई को जो उसका जनरेटिंग प्लांट्स है उससे डायरेक्टली अपने इंडस्ट्री को जो वहां से 500 या 1000 किलोमीटर अवे है उसको भी सप्लाई दे सकता है बाय यूजिंग ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम. नेक्स्ट है आपका environmental dispatch and new plant siting. Interconnection can allow generating units with lower environmental impact to be used more and units with larger impact to be used less in areas where environmental and land use constraints limit the siting of power plants. Interconnection can allow new plants constructed in less sensitive areas. After the development of interconnection system, जब से हमने interconnection करना शुरू कर दिया सारे ग्रिड्स को आपस में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, तो अब हमारे पास एक फ्रीडम ये हो गया कि वी कैन सेट अप आवर जनरेटिंग प्लांट्स इन एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री. जरूरी नहीं है कि हमें सिटी के बीच में ही लगाना है, हम बहुत दूर भी लगा सकते हैं, सेंसिटिव एरिया से ज्यादा डिस्टेंस पे लगा सकते हैं, जहां पे लैंड का कॉस्ट कम हो वहां पे लगा सकते हैं, जो लैंड अनयूजेबल लैंड हो, लाइक इन राजस्थान में बहुत सारे प्लेसेज है जहाँ पे लैंड्स बेकार है, वहां पे भी हम लगा सकते हैं क्योंकि इंटरकनेक्शन सिस्टम हमारा रेडी है, तो हम वहां पे जनरेट करके उसको हम प्रॉपर्ली सप्लाई दे सकते हैं अगले किसी भी एरिया में अक्रॉस द कंट्री. देन कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल्स. इंटरकनेक्शन परमिट प्लान्ड आउटेज ऑफ generating and transmitting facility for maintenance to be coordinated to that overall cost and reliability for the interconnected network is optimized. हम प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बाय यूजिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम. अगर उसमें हमारा कोई जनरेटिंग और ट्रांसमिशन में कहीं पे प्रॉब्लम आनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो हम बाईपास करके सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं और उसके ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. देन सम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरकनेक्शंस आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, but as a rough figure of merit it has been estimated that interconnection in North America have resulted in an overall annual cost saving of $20 billion in 1990. मीन्स अमेरिका ने जो है जब उन्होंने इंटरकनेक्टेड सिस्टम किया, इंटरकनेक्टेड अपने पूरे पर्टिकुलर अमेरिका को उन्होंने इंटरकनेक्टेड कर लिया बाय सिंगल ग्रिड. उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट 1990 में $20 बिलियन उन्होंने सेव किया इस मैकेनिज्म को अप्लाई करके. एंड दैट द वेस्टर्न यूरोपियन इंटरकनेक्शन हैज रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 7 to 10%. मींस जो उनका कैपेसिटिव जनरेटिंग प्लांट या कैपेसिटिव रिक्वायरमेंट था उसको 7 to 10% रिड्यूस कर लिया यूरोपियन यूनियन ने. आफ्टर द स्टडी ऑफ benefits of interconnection systems, we can discuss regarding the technical parameters of interconnections. अभी इससे पहले हमने सारे बेनिफिट्स के बारे में स्टडी किया. अब कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है जो कि हमें इंटरकनेक्शंस के टाइम पे ध्यान रखना होता है टू इंटरकनेक्ट ए पर्टिकुलर AC to AC और DC to DC. इन दोनों सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें इन सारे पैरामीटर्स को हमें देखना होता है कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं. तो फर्स्ट पैरामीटर इज AC and DC. Early electricity systems such as Thomas Edison's Pearl Station in New York City, which provided the world's first public electric service in 1882, were DC. However, by the beginning of the 20th century, AC system and become a standard worldwide. सबसे जो स्टार्टिंग में हुआ था हमारा जो हमारे सिस्टम सप्लाई दिया गया था डिस्ट्रीब्यूशन एंड से, मैंने पहले लेक्चर में भी ये चीज डिस्कशन किया था इवोल्यूशन ऑफ पावर सिस्टम के केस में, और इसमें भी आपको बताया कि वो DC नेटवर्क था 150 मीटर्स का, 1.5 किलोमीटर्स का 1882 में थॉमस एडिसन के द्वारा दिया गया था.
उसके बाद इन द ईयर ऑफ 20th सेंचुरी एसी सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड में, तो हम लोग एसी का इंटरकनेक्शन करने लगे। द मेन रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ एसी वाज दैट इट इज रिलेटिवली सिंपल टू चेंज एसी वोल्टेज लेवल बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। इसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि जो आपका एसी में है उसमें वोल्टेज लेवल को हम लोग इजीली चेंज कर सकते थे बाय यूजिंग ए ट्रांसफार्मर। स्टेप अप करना चाहो तो स्टेप अप कर लो, स्टेप डाउन करना चाहो तो स्टेप डाउन कर लो, वो हम लोग कर लेते थे। while it is difficult to change in DC voltages. Then जब डेवलपमेंट हुआ, the development of solid state power electronics in recent years has allowed an increased use of DC in the form of HVDC interconnections, but otherwise power system remain AC. मीन्स जब AC का जब पावर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आ गया मार्केट में हमारे पास और इजीली अवेलेबल हो गया और लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो गया, तो हमारा क्या हुआ, जो सिस्टम का इंटरकनेक्शन था वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। सिस्टम एसी ही रहा, जनरेटिंग इन हमारा एसी रहा, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एसी ही रहा, बट जो बीच का ट्रांसमिशन नेटवर्क था और उसका जो इंटरकनेक्शन था वो हमने पूरा का पूरा डीसी में कन्वर्ट कर दिया, एचवीडीसी में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में, और उसके इंटरकनेक्शन बहुत ही सिंपल हो गया, आपस में इंटरेक्ट करना, हम लोगों को इंटरकनेक्ट करना उन चीजों को। तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो है एचवीडीसी इंटरकनेक्शन जो है वो हम लोग ज्यादातर यूज करने लगे इन दी प्रेजेंट एरा। देन सेकेंड पार्ट जो है इसका वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, देयर आर करेंटली टू वाइड स्प्रेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज इन मोस्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड 60 हर्ट्ज इन नॉर्थ अमेरिका एंड इन अदर places strongly influenced by the US power industry such as South Korea. The choice of 50 and 60 hertz system in different location in a consequence of historical legacies rather than the inherent technical superiority of one or other. However, the range of possible frequencies for power system is constrained by practical concern. Means अगर हमें दो पर्टिकुलर एसी सिस्टम को इंटरैक्ट करना है, इंटरकनेक्ट करना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को तो हम नहीं करा सकते, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूरोप में है, यूरोप एंड एशिया में जो है जनरली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं, बट चाइना में 60 हर्ट्ज है। उसी तरह से जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वहाँ 60 हर्ट्ज है, और पर्टिकुलर कुछ अलग अलग सबअर्बन एरिया, जैसे कुछ कहीं पे जो अमेरिका में जो रेलवे का पूरा ट्रांसपोर्ट है वो पूरा का पूरा 25 हर्ट्ज पे है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल है। तो बट इंटरकनेक्शन करते टाइम हमें फ्रीक्वेंसी को देखना पड़ता है, एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मैच्ड। इन द केस ऑफ एसी इंटरकनेक्शन में ही ये केस आता है फ्रीक्वेंसी का, डीसी के केस में किसी भी तरह का फ्रीक्वेंसी का इंटरप्शन हमारे बीच में नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी कंसीडर इन द केस ऑफ एसी इंटरकनेक्शंस ओनली। देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट विल बी द लेवल ऑफ वोल्टेजेस। वोल्टेजेस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें पता है वोल्टेज क्या होता है। A difference in potential cause electric charge on flow from one place to another. Just a difference in heights caused water to flow from one level to another. Voltage is measured in volts and sometimes in thousands of volts or kilovolts. Means अगर हमें ट्रांसमिशन नेटवर्क्स को सिंक्रोनाइज करना है आपस में, तो हमें वोल्टेज लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। इट मीन्स वोल्टेज लेवल को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि हमारा जो जैसे 220 kV लाइन है तो 220 kV लाइन ही इधर होना चाहिए। अगर 220 kV DC है तो 220 kV DC ही इधर होना चाहिए। सो वोल्टेज मस्ट बी मैच्ड। हम अगर ये चाहेंगे कि 400 kV के साथ हम 800 kV को सिंक्रोनाइज कर ले, या 400 kV DC के साथ हम 800 kV DC को इंटरकनेक्ट कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड है करंट। करंट इज द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट टू हायर वोल्टेज टू ए लोअर पॉइंट ऑफ लोअर वोल्टेज थ्रू ए कंडक्टर। अब उसमें जो दो कंडीशन होती है हमारे, और वोल्टेज के केस में भी आप हमेशा एक चीज देखिएगा कि इंसुलेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए हमेशा हम लोग पीक वोल्टेज की या मैक्सिमम वोल्टेज की बात करते हैं, ना कि हम आरएमएस वोल्टेज की बात करते हैं। और जब हम लोग इसी तरह से करंट की बात करेंगे तो करंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली आरएमएस वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है किसी भी करंट के वेव फॉर्म का, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। बट जब हम इंसुलेशन की बात करेंगे देन वी विल ऑलवेज कंसीडर ए पीक और मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, वो कंसीडर करते हैं। देन द इंपीडेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये सारे पैरामीटर्स जो है इन द केस ऑफ एसी सर्किट्स ही आएगा। एसी सर्किट्स इन्वॉल्व्स नॉट ओनली रेजिस्टेंस बट अदर फिजिकल फेनोमेना दैट impede the flow of current. These are inductance and capacitance
रेफर टू कलेक्टिवली एज रिएक्टेंस। इन दोनों को कंबाइंड में हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का। व्हेन एसी करंट्स पासेस थ्रू ए रिएक्टेंस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इन ट्रांसफार्मर, सम ऑफ द एनर्जी इज टेम्पररली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इसके कारण क्या होता है, सम ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में स्टोर हो जाता है हमारे पास, और उस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो रिएक्टिव पार्ट ऑफ जो हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क में है, ये हमेशा दोनों सिस्टम के मैच्ड कराते हैं इन द केस ऑफ एसी सिंक्रोनाइजेशन। पर यूनिट इंपीडेंस जो है दोनों भी सिस्टम का मैच्ड होगा, तभी हमारा सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज हो पाएगा इन द केस ऑफ एसी। डीसी के केस में इस तरह का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, बेसिक डिजाइन फीचर्स ऑफ इंटरकनेक्शंस, मींस जो बेसिक फीचर्स है इंटरकनेक्शंस का वो क्या क्या है। तो पहला जो हमारा फीचर होता है वो होता है वेदर इट इज एसी और डीसी। इफ डीसी वेदर इट इज सिंगल पोल और डबल पोल, दोनों कंसीडर किया जाता है, दोनों फीचर्स को हमें देखना पड़ता है। सेकेंड है ट्रांसमिशन कैपेसिटी इन एमबीए, मेगा वोल्ट एम्पियर में ट्रांसमिशन कैपेसिटी हम लोग देखते हैं इंटरकनेक्शन करने से पहले। देन है ट्रांसमिशन वोल्टेज इन केवी, ट्रांसमिशन वोल्टेज हमें देखना पड़ता है केवी। सिस्टम कंपोनेंट्स एंड ओवरऑल डिजाइन, सिस्टम कंपोनेंट्स कैसी बात करेंगे आप लोग, जब मैं डीसी की बात करूंगा तो पूरा का पूरा सिस्टम कंपोनेंट्स आएगा कि कन्वर्टर कौन सा है, उसका फिल्टर कौन सा है, उसके बीच में लिंक्स कौन कौन से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड सेकेंड इज ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, जो हमारा एग्रीमेंट है पर्टिकुलर ग्रिड सब स्टेशन या किसी के भी साथ, उसको ओवरऑल हम लोग देखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपने टॉपिक देखा, जो मैंने आपको ये स्टडी कराई ड्यूरिंग लेक्चर में, द लेक्चर इज नियर बाय 25 मिनट्स और 5-6 मिनट तो मैं आपको ओवरव्यू दिया ओवरऑल। तो ये जो लेक्चर है एज पर एज योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आईकेजी पीटीयू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर पावर सिस्टम 1, इससे ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट इज इंटरकनेक्शंस, क्या होता है इंटरकनेक्शन, आपने समझ लिया कि दो सिस्टम को आपस में जब हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं, आइदर इन द केस ऑफ एसी एंड डीसी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन और इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन दो सिस्टम को, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, मैंने सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए। रिलायबल हो जाता है, इसका में बहुत सारा फीचर्स है जो कि हमने डिस्कशन किया था ड्यूरिंग दी एडवांटेज डिसएडवांटेज, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ आपका ये जो है इंटरकनेक्शंस का। सेकेंड जो आपका है, मैंने डिस्कशन किया इससे पहले कि कौन कौन से पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा आया था, सिस्टम एसी है, डीसी है, उसके करेंट्स क्या है, वोल्टेज लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, और इंपीडेंस और रिएक्टेंस जो है पूरे सिस्टम का वो भी कंसीडर किया था। अब हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया, बेसिक डिजाइन फीचर्स ऑफ इंटरकनेक्शंस। तो ये सारा कंबाइंड होके आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है, एक बेसिक ओवरव्यू जो है आपको वो मिल गया इंटरकनेक्शन सिस्टम का। इसका जो अपडेटेड वर्जन है बियॉन्ड योर सिलेबस, जो आप जानना चाहते हैं इन फ्यूचर, दैट विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब मैं इसका अपडेटेड लेक्चर डिजाइन करूंगा और उसको रिलीज करूंगा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। इससे पहले आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट है टू कंप्लीट द टॉपिक इंटरकनेक्शन बिटवीन टू सिस्टम्स, या जो आपका एसी एंड डीसी इंटरकनेक्शन जो आपका ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। सिलेबस में इस तरह से लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज्ड एंड डीसी इंटरकनेक्शन, वही हुआ, सिंक्रोनाइज्ड को हम लोग एसी ही कहते हैं। तो आप लोग फेडअप मत होइए, वर्ड्स कुछ चेंज कर दिए इधर उधर, बट द कंसेप्ट एंड द फंडामेंटल इज द सेम। और आपको मैंने पहले भी कहा, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आप अगर फैकल्टी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि मैं बहुत सारे नए नए फीचर्स लेके आऊंगा। अभी एक्चुअल में सब्जेक्ट लोड ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, तो मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, बट आफ्टर 15 डेज जब मैं एक बैलेंस कंडीशन में आ जाऊंगा टू कंप्लीट द 50% सिलेबस ऑफ इंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd, 5th एंड 7th, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे और फीचर्स लेके आऊंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और अगर आप फैकल्टी है तो प्लीज इसको अपने स्टूडेंट में जरूर शेयर करें। ओके गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।